अच्छा, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया था कि असद अब्बास राजा साहब का कमाल ये है कि इन्होंने पंजाबी सकाफत को न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में फ़रोग दिया बल्कि बैरून मुल्क और ख़ास तौर पे यूएई में बल्कि पूरी दुनिया में पंजाबी सकाफत को फ़रोग दे के फिर इन्होंने सोशल मीडिया पे शोहरत की मंजिलें तय की हैं और ऐसी तय की हैं कि कलांचे भरते हुए गए हैं। और अब वो बैरून मुल्क जो गोरियां हैं वो इनको इनके साथ सेल्फी लेने के लिए पैसे देने के लिए तैयार है और शायद ये ले भी लेते हो, मुझे नहीं पता। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इनकी कोई नहीं गल पुछ दिया है कुछ नहीं है ना। इज इट फ्री फोटो और पेड? मैं फ्री कोई मसला नहीं आ फ्री फोटो बनवा। ये सिर्फ सहूलत गोरियां नु दिंदे हो या सारे वास्ते? सारे वास्ते फ्री दी। अच्छा तो ये दसो कि धीतो रांझे ने ते ऑब्वियसली हीर वास्ते ए गेटअप कीता सी ना, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸਣਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੀਰ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਨਾਂ ਵੀ ਰਾਂਝਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਲੜੀ ਵੀ ਰਾਂਝੇ ਦੀ। ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਰ ਦੁਬਈ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੁਬਈ ਉੱਥੇ ਬੰਜਲੀ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਉਸਲੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਲੋਕ ਹੈਰਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਔਨ 에ਅਰ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿਬਾਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਕਾਫਤ ਇਹ ਕਲਚਰ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲੀ ਬਣ ਲੈਣੀ, ਜੱਗਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਖੁੱਲਾ ਜਨਾਬ। ਮਹਿਲੀ ਧੋਤੀ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲੀ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਰਗੋਦਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਜਲਾ ਵੀ ਤੇ ਮਹਿਲੀ ਵੀ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੰਜਲਾ ਤੇ ਮਹਿਲੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਂਟ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ ਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਰੇ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਉਣੇ। ਧੋਤੀ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਧੋਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਧੋਤੀ ਨਾ ਧੋਤੀ ਨਾ ਮੈਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਇਸ ਮੰਜਲੀ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ? ਸਰਗੋਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਸਰਗੋਦਾ ਇਹ 2015 ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਕੋਟ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੀਨ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਨਾ ਗਾਰਡ ਆਏ ਗਾਡਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਮਹਿਲੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲਸ ਹੋਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਇਤਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ 2015 ਇਹ ਧੋਤੀ ਔਰ ਪਗੜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ 1000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਪਾਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10,000 ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧੋਤੀ ਦਾ ਪਗੜੀ ਦਾ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਪਹਿਨਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਤੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲੈ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰਾ ਅਜੇ ਉਮਰ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਤੂੰ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋੜ ਵਾਈਟ ਹੀ ਪਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਚਿੱਟਾ ਦੋ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਪਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਪੂਲਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਬਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। दोनों चीज़ जी बिल्कुल। अच्छा, कंटेंट में मैंने देखा है कि आपका ज़्यादा फोकस जो है ना और बड़ा ज़बरदस्त फोकस है और मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से सच्चाई से आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि उसका जो मेन पैगाम है आपका आपके सोशल मीडिया कंटेंट पे वो है बुजुर्गों की बड़ों की इज्जत कर। ये कमाल बेशक। बहुत वेरी गुड।
इनके मैंने वीडियो क्लिप्स देखे हैं जिनमें ये अपने वालिद साहब के जूते पॉलिश कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं जगह जगह पे। क्या बात है। और वालिद साहब के साथ चलते हुए साफ पता चलता है कि दो दोस्त भी जा रहे हैं, वाह। लेकिन इनका सांस भी खुश्क हुआ हुआ है वालिद साहब के एहतराम में। बहुत वो अच्छे। बहुत खूबसूरत एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। मैं मतलब है कि दसना चाहना कि अगर कोई अल्लाह मैंने इज्जत जी इस मकाम ते आंदा है ना, सिर्फ मैं जी जुतियां साफ करदा वालिद दियां, या मैं मेरा जिंदगी का रिकॉर्ड है, मैं घर होया, मेरे वालिद साहब घर होए तो मैं लाजमी, अगर मैं बीमार नहीं थे लाजमी मैं उन्होंने मुट्ठी भरनी है गल पता बड़ी गल मुझे ना विक्की साहब जो बात करनी होती है प्लीज आप डायरेक्ट किया करें। ये कह रहे हैं जी कि वालदैन की खिदमत भी, इज्जत भी जरूरी है और बेगम के जूते पॉलिश करना भी जरूरी है। कहो ना, उनके सामने कहो। नहीं ये मैं कदों ਤੁਹਾਨੂੰ ये ईमेल की थी ये अभी आप साइड पे कह नहीं रहे थे। साइड पे हाँ नहीं, क्यों डरते हैं आप? ये गलत बात नहीं है। बेगम की खिदमत नहीं, करना, बिल्कुल। बेगम के जूते पॉलिश कर देना, कर- बेगम के लिए सुबह चाय बना देना, नाश्ता बना देना, दोपहर का कोई नहीं है। ये देखो फ्लो कितना अच्छा जी इनमें तो खलक है ना जी। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਫਲੋ ਹੈ, ਜੂਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਰ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇ। अच्छा आप तो ये कहना इसीलिए डांट भी तो खाते हो ना कि काम याद नहीं रखते। नहीं, मैं नहीं खाता डांट, इसलिए कि मुझे अपनी ड्यूटी याद है। असल में बात पता क्या सुना, बंदे ने बाप के जूते साफ किए हो ना, हाँ। फिर पगड़ियां इसी तरह खूबसूरत लगती हाँ, ब्यूटीफुल। अच्छा असद भाई ये बताएं कि आप दुबई में शुगल क्या करते हैं कि सिर्फ टिकटॉक ही बनाते रहते हैं? काम टिकटॉक में 1 या 2 दिन मैं देते हूँ। अच्छा, इतवार हफ्ते में में। 2 दिन टिकटॉक बनाते हैं बिल्कुल, और उन 2 दिनों में फिर काम धंधा नहीं करते। जी बिल्कुल। अच्छा, और असल में बिजनेस क्या है या जॉब असल करते हैं? काम साडा डॉक्यूमेंट्स क्लीयरिंग दा। डॉक्यूमेंट्स क्लियरिंग से मुराद? जितने लोग भी इंटरनेशनल हब है जेड़ा बिजनेस दा दुबई अच्छा। गिणिया ਜਾਂਦਾ हाँ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ अच्छा ਉਹਦੇ तो ਵਾਸਤੇ बिजनेस पेपर्स वगैरह। ਜੀ ਆ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰਨੀ अच्छा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा, ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अच्छा, ਬਾਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ तो ये फलक शेर आप कह रहे थे आपने कोई कंपनी रजिस्टर करवानी है यूएई में, कौन सी कंपनी कह रहे थे विकी भाई? ਇਹ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। हाँ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹੀ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਡੇ ਬੌਸ ਹੀ ਨੇ। हाँ सही बात। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ यार कंपनी बाग पता है क्या चीज है? हाँ जी। कंपनी बाग उकाड़ा में मेरे घर के बिल्कुल सामने सामने, इधर मेरा घर था और इधर कंपनी बाग था, जो उकाड़े का एक ही इकलौता बाग था। अच्छा और आपको और पता उससे कंपनी बाग, बेपनाह हमारी यादें जुड़ी हुई हैं कंपनी बाग और आपको पता कंपनी बाग क्या है? ये मेरे घर के भी सामने कंपनी बाग है फैसलाबाद में। अच्छा, हम उधर खेलते रहे। अच्छा। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। हाँ, ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਸ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਸ ਕਣਕ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਲਸ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਫੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ। हाँ, वाकई ये तो बिल्कुल सही है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ। और इन्हें जान लगे कहना मैंने थोड़ा जिहा देसी घ्यो चाहिए, भाई बीमार ने। मैंने सुना है कि आप बाकायदा, आप और आपके वालिद साहब गाँव में पंचायत लगाते हैं बाकायदा, और बिल्कुल। दूर दूर से लोग फैसले करवाने आते हैं। ਬਿਲਕੁਲ तो ये पंचायत की क्या अफादियत है? आज के दौर में कुछ लोग कहते हैं ये पंचायत का जमाना थोड़ी है। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਤੋਂ ਉਮਰੂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੁਕੰਦੇ ਸਨ, ਮੁੜ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜ਼ਹੂਰ ਅਮਨ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਅੱਬੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮਸਲਾ ਰਾਂਝਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਬਣਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਸਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੋ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖਣਾ ਬਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੰਡ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੇਰੇ ਹਲ ਥੋੜੀ, ਤੇਰੇ ਹਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਮੁੜਾ ਦੇਣ ਚਲੋ ਮਨਸਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ। सही बात ਹਰ है। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਕਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਬੜਾ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਰਜੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਲਿਦ ਐਸੇ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ 3 ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। और ਉਹਦਾ फैसला ज्यादा मन्निया जाता है। ਇਹਦੇ ਤੇ 3 ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਚੌਥਾ चौथा भी तैयार। अच्छा, और मजे की बात ये कि ये जो गांव में जस्टिस पंचायत करते हैं वो वाकई जस्टिस करते हैं, बड़े मेहनत के फैसले करते हैं। और वो मेरा ख्याल है उस पर क्या होता है असद भाई के कुव्वत नाफजा जिसको कहते हैं, प्रोमलगेटिव फोर्स जो है, जी, जी। वो क्या है कि जी आपने मानना ही
मानना है? ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਟਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਲੀਅਤ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋੜ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਇਤਨਾ ਸਾਡਾ ਰੋਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋੜੋ ਚੈੱਕ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ बिल्कुल हाय हाय ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੱਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਜਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਜੱਜ ਕਦੀ ਵੀ ਵਕੂਅਤ ਨਹੀਂ ਗਏ नहीं ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋर्ट ਹੋਣੀ फाइनल ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ और एक फैसला आम आदमी की अप्रोच में भी है, पंचायत सिस्टम जो है वो तालीम याफ्ता बंदा नहीं है, वो अदालतों को अफोर्ड भी नहीं कर सकता, फाइनेंशियली भी अफोर्ड नहीं कर सकता और पढ़ा लिखा भी इतना नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा कि एक खातून जो है वो डिप्टी कमिश्नर को कहती है कि मेरा केस सारा ये है, तो काफ़ी देर समझाती रहती है वो खातून, तो डिप्टी कमिश्नर कहता है कि बीबी मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही, जी बिल्कुल तुम वकील करो वो मुझे समझाएगा। हाँ जी तो खातून कहती है समझ तेनू नहीं आन रही तो वकील मैं करा। वाह वाह क्या क्लासिक सच्ची जवाब गल है। आई होती नाज़रीन, राजा साहब की खूबसूरत और दिलचस्प बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अच्छा असद भाई, आप बता रहे हैं कि आप पेपर वर्क कंप्लीट करते हैं कंपनी खुलवाने के लिए, वीज़ा असिस्टेंस भी, तो ये दुबई की तरफ से पाकिस्तानियों के वीज़े बंद हुए हैं, तकरीबन बंद, बड़ी सख्ती है, जी जी तो ये कब नरमी पैदा होगी और इसकी वजह क्या है? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਪਲਾਈ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਫੌਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੁਪਈਏ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੀਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇਤਨੇ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਦਿਸਾਂ ਤੇ ਆ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਫਿਰਾ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟਿਕਟ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਰੂਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਉਹ ਬੈੱਡ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕੋਈ 20-30 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਡੱਕ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ 2 ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਾ ਦੇਣਾ ਬਸ ਸੁਬਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਮੰਗ ਪੈਨ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ अच्छा ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਦਰਮ ਫੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀ और ਲੋਕਾਂ ये ਮੁੜ काम ज्यादा पाकिस्तानी करते थे? ਪਾਕਿस्तानी ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ इन्होंने फ्रॉड भी बड़े किए हैं ਜਾਂ ਫਰਾਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਚਲੋ ਫਰਾਡ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ तो ये इसमें कोई नरमी आने का इम्कान है पॉलिसी में? ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੁਬਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ अच्छा, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ दोबारा मंगन की इजाजत हो जाएगी। ਮੰਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਸਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ये मांगने की ये जो है आदत है, ये कैसे खत्म होगी? मतलब ये जो प्रैक्टिस कर वो रहे हैं आप सजा ही बता दे रहे रहे हैं। नहीं, उस पर पाबंदी कैसे लगाएंगे? कोई नया कानून ला रही है दुबई गवर्नमेंट? ਦੁਬਈ ਚੱਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਤਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ हाँ, यही उसकी तरक्की की वजह। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਫਾਦ ਕੇ ਡੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫੌਰਨ ਡਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਸਲੇ ਇਥੋਂ एयरपोर्ट से जाएगा दुबई वास्ते ਉਹਦਾ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एक तो होना बहुत जरूरी यानी पाकिस्तान की पुलिस, जी जी पाकिस्तानी पुलिस की तरफ से क्लियरेंस सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट एक होना और इधर पाकिस्तानी पुलिस के लिए आमदन का एक और दरवाजा खुल गया। जी बाकी एक और हो गया कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਲੈਣਾ ਉਸ ओरिजिनल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ओरिजिनल ਹੋਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੇਕ ਵੀ ਡੰਮੀ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫੇਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ उन्होंने प्रॉपर सख्ती कर दी थी उससे उन्होंने। नहीं, वैसे भिखारियों की वजह से इन मुल्कों में पाकिस्तान की जो बदनामी हो रही है वो नाकाबिले बयान है, नाकाबिले बयान है, शर्मिंदगी होती है और बाकायदा यहाँ से गैंग के गैंग जाते हैं। बिल्कुल एक वक्त होता था जब मैं सऊदी अरब में अरब न्यूज़ में था, काम कर रहा था, तो उन दिनों में एक टिपिकल सी वारदात होती थी कि वहाँ पे हरम के बाहर कोई एक बंदा आपको मिलता था, वो कहता था, और साथ उसके दूर एक खातून बैठी होती थी, वो पता नहीं बुर्का पहना होता था, पता नहीं उसके अंदर खातून होती थी या पत्थर के ऊपर उसने बुर्का पहनाया होता दूर, और वो करीब आके आपको कहता था कि जनाब ये मेरी बेगम है, हम आए थे उम्रा करने, तो पासपोर्ट गुम हो गए, इतने पैसे दे दें। मुझे अच्छी तरह याद है एक दफ़ा मैं और मेरी बेगम वहाँ पे हम उम्रा करके तो फारूक, मैं पहले फारूक हो गया उम्रे से, तो मैं बाहर आके हरम के बाहर बैठा हुआ था दीवार पे, तो वो वाइफ का इंतज़ार कर रहा था, तो दूर से मैंने एक नौजवान को आते देखा, उसकी चाल से मुझे समझ आ गई कि कौन है। तो जब वो मेरे करीब आया ना तो मैं दीवार पे बैठा हुआ था, मैंने उसको बड़े एहतराम से सलाम किया, मैं क्या तशरीफ़ रखे थे, वो मेरे साथ बैठ गया,
मैं क्या जी मसला ये है यार कि मैं और मेरी बीवी यहाँ पे आए थे, हमारा पासपोर्ट गुम हो गया, तो यार थोड़ी सी मदद कर दे। वो बंदा शर्मिंदा हो गया, मुझे देखने लग गया, कहता सर जी आपको कैसे पता चला? मैं क्या बेशरम, तुम्हारी साल बता रही है। यानी जो काम उसने कर रहा था वो मैंने उससे पहले कर दिया। आगे से इंतहाई ढीठ किस्म का इंसान था। मुझे कहता सर जी कित्थों दे हो? मैं क्या उकाड़े था? कहता सर जी मैं रनाले था। असद रांझे साहब, आप तख्त हजारे के बिल्कुल साथ रहते हैं, कभी रांझे दे घर भी फेरा लाया? रांझे दे घर मतलब कि ओदा घर पुराना जड़ा है ना, वो तो ढह डूगे हुआ। एक मस्जिद जड़ी होंदी है इन्हों दे घर दी, वो खड़ोती है थे। एक कोठा जड़ा वो खड़ोता, एक कमरा और एक मस्जिद है। जी जी। बाकी तुसी दसो, तुसी भी किदाई हीर दे घर गए हो थे? आज सचमुच में हमारे पास ये सियाल भी हैं और ये इनका ताल्लुक झंग से भी है और वो रांझे भी हैं और उनका ताल्लुक भी तख्त हज़ारा से है। इत्तेफाक की बात है। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੋ ਸੀ ਉਹ ਕਾੜੇ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ फैसलाबाद ਦਾ ਸੀ। सर, हमारी महफिल में मिर्जा यासिर जावेद मौजूद हैं, जो कि प्रोफेशनल सिंगर हैं, और वो आज हमें गाना सुनाएंगे। प्रोफेशनल ने भी नहीं सुनाना तो किसी ने सुनाना फिर? जी। निरे गरे निरे सा निरे गमा दा निरे सा नि दा पा मगरे निरे सा। वाह वाह। वाह जी वाह। आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। पहले से मरासिम ना सही, फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो रस्मों रगे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिश ही सही। दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। बहुत अच्छे जी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनैद भाई, बहुत अरसे से मैं आपको देख रहा हूँ, हस्बी हाल से। अब ये ना कहिएगा बचपन से देख रहा हूँ। हमेशा प्रोग्राम के आखिर में आप एक दुआ देते हैं, हाँ। खुश रहें, खुश रखें। हाँ। अब ये खुश कैसे रहा जा सकता है और खुश कैसे रखा जा सकता है? बहुत अच्छा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि खुश रह ही वो सकता है जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है। मेरे बात याद है। बहुत अच्छे। क्या बात, बहुत अच्छा जी। अगर आप सिर्फ अपने हिस्से की खुशियां चोरी करके संभाल के रखेंगे, आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। ये कोई मैं फ़लसफ़ा नहीं बोल रहा, ये अपनी ज़िंदगी का तजर्बा और मुशाहिदा बता रहा हूँ कि आप ज़िंदगी में खुश अगर खुद रहना चाहते हैं तो दूसरों को खुश रखने की ज़रूर कोशिश करें। दूसरा, खुद कैसे खुश रहा जा सकता है, सादा सा तरीका ये है कि इस बात को तस्लीम करने के बाद कि सारे निज़ाम को चलाने वाली एक हस्ती मौजूद है, उस हस्ती पर आपका ईमान गैर मुतज़लज़ल होना चाहिए और उसका पहला मुज़ाहिरा ये है कि आपको मुस्तकबिल से खौफज़दा नहीं होना चाहिए। हम मुस्तकबिल से डरे हुए हैं, मेरा कल कैसा गुजरेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, फिर बच्चों का कुछ बन जाता है तो फिर मेरे दोतों का पड़पोतों का क्या बनेगा। यार अल्लाह ने मुझे मेरी 7 नस्लों का निगरान बना के नहीं भेजा, मेरे हाथ में तो खुद कल का मुझे नहीं पता। मैंने अपनी जिंदगी, आप सब लोग जितने हैं मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप तशरीफ रखते हैं, आप लोग, आप ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताएं
कि जहां आप हैं, जो आपने जिंदगी में किया है, क्या वो आपकी प्लानिंग थी? कभी भी नहीं। 99% लोग जो है उनकी जिंदगियों में वो नहीं हुआ था जो उन्होंने प्लान किया होता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से होता है। तो इसलिए मुस्तकबिल के, हम मुस्तकबिल घर नहीं है, हम मुस्तकबिल के बारे में नहीं जानते। तो जब जानते नहीं है तो कितना, हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मुस्तकबिल से बेपरवाह हो जाए। मुस्तकबिल के लिए बचाएं कुछ ना, मुस्तकबिल अगर आपने संवारना है अभी कुछ कर लें बस। बिल्कुल। लेकिन मुस्तकबिल से हर वक्त परेशान रहना, क्या बनेगा, मुझे कोई बीमारी लग जाएगी, मेरे बच्चे, मेरे पोते, वो ऐसा ना डरे ना यार, वो ऊपर वाली जात ने रिस्क भी देना, सब कुछ उसी ने देना, बस। इत्मीनान ही खुशी है। सर मैं आपको एक कावश तमीमी का दोड़ा सुनाना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है बेटा? हसीब करम। सुनाओ। सारी जिंदगी वक्त परस्तां दी असा नौकरी यार करेंदे रह। अच्छा। सारी जिंदगी वक्त परस्तां दी असा नौकरी यार करेंदे रह। जिन जिमें जिमें लोड़ आई खिदमत दी असा उंजे उंजे यार वंडेंदे रह। बेफैज साडी लजपाली नू, बेफैज साडी लजपाली नू ओ गर्जा नाल तुलेंदे रह। तावी कावश खून दा हर कतरा ओ मंगदे रह, असी देंदे। जी। अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन। ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना कौन। वे बुले आसाइया मैं गुट गुट रोइया, जिवें आटे विच लून, जिवें आटे विच लून। असा नाजुक दिल दे लोग हाँ, साडा दिल ना यार दुखाया। करना झूठे वादे कीता, करना झूठियां कसमां खाया। कर तेनू किन्नी वारी आखया सानू वल वल ना आजमाया। कर तेरे प्यार दे विच मैं मर जा, सानू इना याद ना आया कर। सजना वे आजा मुर छेतिया, हुन डीका तेरिया। लभदा फिरेंगा हुन लभदियां तेनू मिट्टी दियां टेरी। अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। विनय साहब, मेरे कज़न ने आपके शो में आना है। आप कैसे आए? सर आपकी टीम के साथ रब्ता किया, उन्होंने मुझे फ़ौरन रिस्पांस किया और मुझे बुला लिया। तो आपके कज़न के साथ हमारी लड़ाई हुई है जो उसको नहीं बुलाएंगे? वो भी हमसे राब्ता करें, उनको भी बुलाएंगे। बल्कि मैं तो अपने व्यूअर्स से कहना चाहता हूँ जो टीवी पे हमें देख रहे हैं या सोशल मीडिया पे हमें देखते हैं, वो ज़रूर हमारे शो में तशरीफ़ लाएँ। हमारे लिए बाइसे इफ्तिखार है, हमें बहुत खुशी होगी अगर वो हमारे शो में तशरीफ़ लाएंगे। और ख़ास तौर पे अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप कोई बात कहना चाहते हैं और आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, आप शेर सुनाना चाहते हैं, आप गाने के हुनर पे दस्तरस रखते हैं, या कुछ भी आप हंसाना चाहते हैं, आपको जुगत अच्छी आती है, तो ज़रूर हमारे शो में आएँ। ये स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है इस पर रब्ता करें, हम जवाब देंगे, आप आएंगे, हमारी इज़्ज़त में इजाफा होगा। और मैं आखिर में कह भी देता हूँ, जीन सीन मीम फे मुतमन्नी शिरकत नसीम विक्की जुनैद सलीम सुहाना से हाल। और दुनिया में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जिस घर में सास शेर और बहू सवा शेर हो तो वहां फिर ऐसे मनाजर देखने में आते हैं। हेलो अम्मी, आपकी बेटी के हाथों पे छाले पड़ गए। नहीं, बर्तन नहीं धोए मैंने, इस्त्री से भी नहीं पड़े। मैंने कहाँ से बेड खींचना था। आपकी बेटी ने 3 मौसमियाँ छीली और हाथ पे छाले पड़ गए। सच कहते हैं माँ का घर माँ का ही होता है और सास सास ही होती है। ब्लड सिर्फ माँ ही उठाती है। आपको पता है चाय के एक कप के लिए मुझे कितनी तकलीफ देती है। वहाँ किचन में चाय बना के मुझे आवाजें देती है, क्या नहीं अपनी चाय का कप फाड़ के ले जा। अब आप खुद देखिए कितनी सर्दी है। कहाँ किचन, कहाँ मेरा कमरा। मैं यहाँ से उठती हूँ, जाती हूँ और वहाँ से चाय पकड़ के ले आती हूँ। इतना नहीं कि मुझे खुद चाय दे दे, साथ ही तो कमरा है मेरा। इतने काम कराती है बुढ़िया मुझसे। अम्मी सारे घर के काम मैं ही देखती हूँ। अब मशीन में गंदे कपड़े मैं डालती हूँ, बटन मैं दबाती हूँ
और ये बुढ़िया क्या करती है? कुछ भी नहीं करती, सिर्फ कपड़े निकालती है, निचोड़ती है, छलती है और छंड के छत पे डाल देती है। और सारा दिन अपने गोडे पकड़ के तो ऐसे बैठी रहती है जैसे शुएब अख्तर के जितना स्टार्ट लेके आई हो। अम्मी जब ये बुढ़िया हांडी पकाती है ना तो मुझे आवाजें देती है कि आती है 6 बंदों को खाना डाल के मैं देती हूँ, मैं इतनी थक जाती हूँ। आज इतनी सर्दी है, इससे इतना सा नहीं होगा कि थोड़ा सा कंबल मेरे ऊपर कर दे। अम्मी इतने ये नखरे करती है ना, कहती है मुझसे बेड पे नहीं बैठा जाता, मैं जमीन पे ही ठीक हूँ, नीचे कारपेट पे बैठी रहती है। रात मेरा मूंगफली का दाना गिर गया, इतना नहीं हुआ कि मुझे ढूंढ के ही दे दे। और जब मैंने देखा तो खुद ही बैठ के करके खा रही थी। अब मैं क्या करूं? हाँ जी अम्मी। आए हाय जी अम्मी बहुत, हाँ जी मुझे फीवर हो रहा है। तेरी माँ दी ट्यूशन नहीं मुक्की हले? अल्लाह हाफिज। हाय अल्लाह, मेरे कंधे में दर्द खाई जा रही है, ठंड वध गई है। हाय अल्लाह, मेरी तो गर्दन में इतना दर्द हो रहा है, मुझसे तो उधर देखा ही नहीं जा रहा। नहीं तेरे इधर दर्द होंदा, उधर दर्द नहीं होंदा, टुट पैनी। मां जी जो मैं इधर आनी है तो मैनू दर्द होंदा है, जो मैं उधर देखनी है तो मैनू दर्द नहीं होंदा। माँ जी। हाँ जी। मेरी सारी बॉडी में पेन हो रहा है, मुझे फीवर हो रहा है, मेरी गर्दन में भी बहुत दर्द है, हो सके तो वहाँ से पेन किलर टैबलेट्स दे दें। अब अच्छा तो नहीं लगता ना कि मैं आपसे दबवाऊं, अपने सवाब के लिए आप करें तो मुझे कोई इतराज नहीं है। हाय अल्लाह, मेरी गर्दन टूट रही है। पुत्र तौन दा पटाका कढ़वा ते मेरे को कढ़वा, ना सज्जे वेखेंगी ना खब्बे, ते जिथे बैठेंगी पीछे ही वेखेंगी। माँ जी अच्छा तो नहीं लगता, जरा ये मौसमी तो इधर पकड़ा दें। सुबह से एक मौसमी नहीं खाया मैंने। ले फाड़। थैंक यू माँ जी, बस सुबह से 2 मौसमियाँ ही छीली हैं मैंने। 2 मौसमियाँ छीली हैं ते आ जड़ी प्लेट भरी पई है। माँ जी आपको तो पता है आजकल फ्रूट भी 2 नंबर आने लग गए, हर चीज़ जाली मिलती है। एक मौसमी छीलो, ऊपर से 3 मौसमियों के तो छिलके उतरते हैं, क्या हो गया आपको? सही माँ जी। जी आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे लगता है बेटा कोई नई बात है, जब से आई हो माशाल्लाह 6 महीने से बीमार ही चल रही हो, मैं तो सोच रही हूँ हॉस्पिटल ही एडमिट करवा दूँ तुम्हें। अच्छा माँ जी जरा मौसमी तो खोल देना। ये तो करता तेरा सिर ही खोलना। आए मेरे हत्थां च पता नहीं कि कुड़ौल पै रहे हैं, कमजोरी तो। पुत्र मसामी तो आप नहीं खोल सकती? नहीं माँ जी तुसी वड्डे हो सकता तुसी खोलो विचों नाम ही निकल आए। मैं तो खोलिया सी ते कीड़ा ही निकलिया विचों। ले फड़ खा। माँ जी। हाँ जी। तानू पता है माशाल्लाह तानू ते ठंड लगदी नहीं, तुसी ते आप चलदी फिरदी रजाई हो। माँ जी। हाँ जी। अच्छा तो नहीं लग रहा, मेरे लिए जरा यखनी बना लो, मेरे गले च बड़ी खराश होने रही है। ते पुत्र मसमियां डफी जा रही हैं सवेर दी ते खराश ही होनी है, ते उतू तू यखनी पीन लगी है, सर्द गर्म हो जाएगा। माँ जी तुहानू चंगी तरह पता है कि यखनी नाल खराश ठीक हो जाती है। नहीं पुत्र गले च वैपर मारो फिर भी ठीक हो जाती है। माँ जी। हाँ जी। अरे माँ जी मेरी तो कमर ही टूट रही है। पुत्र ब्याह तो पहले भी इंज ही बीमार होंदी सी या फिर इत्थे ही आके रहन लगी है? माँ जी ब्याह तो पहले मैं कभी बीमार नहीं सी हुई। मैं तो कभी मौसमी दा इंज करके बी नहीं सी कढ़िया, मेरी माँ कढ़दी हुंदी सी। क्यों पुत्र मौसमी खांदे ते बेहोश हो जांदी सी? माँ जी ਜਦੋਂ मैं पक्की गल करनी उदों माँ जी कहंदी। मैं बहुत गल्लां सुनांदे हो, एक मेरी तबीयत नहीं ठीक। तेनू इधर दी भी गल सुन गई है। पुत्र ਜਦੋਂ मैं विआह के आई सी ना दूसरे दिन ही पूरा घर साम लिया सी, अलमारी दियां चाबियां वेड़ा धोता सी, हांडियां पकातियां सी, जाले लाते सी, फर्नीचर इधर उधर करता सी, ते तू माशाल्लाह पिछले पारे भी मैनू सस ही टकरी है। इस उम्रे भी मैं काम ही करने सी। माँ जी तुसी दुल्हन ले आंदी है कि नुकरानी ले आंदी है? नहीं केड़ी नुकरानी, तेरी ते जुत्ती पुट्ठी पई हो ते तू पुट्ठी पा के निकल जानी है। माँ जी तुहाडे दौर दी खुराकां बहुत सही चंगियां सन,
यार गोडे गिट्टे बहुत मजबूत ने माँ जी। एक मैनू बुखार है, दूजा मेरी लत्तां च इन्ना दर्द है। तेरे पुत्र दंदा च दर्द नहीं, जिहड़ी मुसम्मियां डफी जानी है। तेरे गले च दर्द नहीं, जेदे तू अंदर जा रही ने मुसम्मियां। माँ जी हाले मेरी तुहाडे जिन्नी उम्र नहीं हुई, मेरे दंद ही तो ठीक ने। मुसम्मियां थक गईयां, तेरे दंदां नू खलियां नहीं पईयां। माँ जी अच्छा तो नहीं लगता। लै कोई वड्डी फटीक पाण लगी। मेरे लिए सूप, ड्रम स्टिक और नूडल्स बना दें प्लीज। पुत्र सोहरे आई है। माँ जी सोहरे ही आई हाँ, होर मैं अडियाला आई हाँ। पुत्र एडा एडा मुंह अडियाला करके मुसम्मियां खाई जा रही हैं। माँ जी किहो जिहियां गल्लां करदे, तुसीं ताने ही मारी जा रहे कि मेरी तबीयत नहीं ठीक। सफाइयाँ भी कर लो आज। माँ जी जहाँ अपनी अलमारी सेट करनी है वहाँ पे मेरे कमरे की भी अलमारी सेट कर दीजिएगा। जहाँ अपने बंदे की जीन धोनी है, मेरे बंदे की भी पैंट कोट धो दीजिएगा प्लीज। हाँ नहीं तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? मेरा बंदा तो जीन जोगा कदों दा मर गया। ओहो माँ जी अच्छा अपने कमरा साफ करना नाल मेरा भी कर देना प्लीज। पुत्र जिथे इन्ने काम मेरे कोल करा लेने ते मसम्मियां भी मैनू ही खवा देनियां सी। काम करन दी ताकत ते आ जांदी। अच्छा माँ जी अब मैं जरा सोने लगी हूँ। पुत्र तू आप लम्मी पै जाएंगी या वो भी मैं खिंच के लम्मे करा तेनों? नहीं माँ जी इन्नी हिम्मत अल्लाह ने दिती है। लाइटां भी जल रही। हेलो हुण की है? माँ जी मैं ही बोल रही हाँ। और मैं कह रही सी जरा कमरे दी लाइटां बंद कर दो। टुट पैनी। माँ जी वही लाइटां बंद करदा है ना जिहड़ा मालिक हुंदा। घर दे मालिक ते तुसी ही हो। अल्लाह तुहाडा साया साडे सिरां ते सलामत रखे। अच्छा सो जा प्राणिए, तेरे करतूत जेडे ने मैनू सलामत ज्यादा देर नहीं रहन देंगे।